Good morning, students. Today we'll start our new chapter, the sequence and series. First of all, what is sequence? The sequence is the set of numbers arranged in a definite order. Is known as sequence. Such that 1, 2, 3, 4, 5. These are in a definite order. And there is a gap of 1. That's why it is sequence. 1, 8, 1, 7, 8, plus 7, 15. And like this. This is also a sequence, and 2 to the 4 to the 8 to the 16, there is a fixed pattern. That's why it is also a sequence. 1, 4, 9, 16, 25 pairs of the natural numbers. This is also a sequence because they follow a definite rule. So a set of numbers arranged in a definite order by definite rule is known as a sequence. Okay, and now what is series? If I give the sum sign sum in between the two numbers, then it is series. It means 1 plus 2 plus 3 plus 4. It is series, and if I put the commas here, then it will be sequence. Okay. In 10th class, you will read first of all arithmetic progression. What it is? Arithmetic progression. Now what is arithmetic progression? Known as AP in short form. मैं इसको हमेशा AP ही बोलूँगा बेटा. तो AP क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिनके कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सेम रहे, कॉमन डिफरेंस सेम रहे, जैसे कि 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1. Because the common difference is same, that's why it is AP. यहाँ देखते हैं जरा, 7 is the difference, 15 - 8 7 is the difference, and the common difference is same, that's why it is AP. The difference is 2, the difference is 4. No, it is not AP. इसका क्या नाम होगा वो आगे चलकर बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये AP नहीं है एटलीस्ट. 4 - 1 3, 9 - 4 5. आगे चेक करने की जरूरत नहीं है अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है. It is not AP. ये AP नहीं. ओके, तो इट मीन्स व्हाट इज AP? तो हमने ये देखा कि AP एक ऐसे नंबर की सीक्वेंस है या सीरीज भी बोल सकते हैं व्हेन द डिफरेंस इज सेम. A sequence in which the difference between two consecutive numbers is same is known as arithmetic progression, और हम इसको बोलेंगे AP. Okay? Now, in AP, the first term, whatever it is not necessary that it is 1. If I rub this, now it is an AP also. Now, 5. This is the first term. It is first term. And if we represent the first term by A, we will represent it by A. Some books represent it A1 or T1 also. Normally it is A. मेरी भी आदत A लिखने की है, मैं भी A लिखूंगा. But sometimes it is written as A1 or T1. Similarly, second term, it is second term. It is written as A2 or T2. मेरी आदत फिर से वही T2 भी रहेगी. T2. थर्ड टर्म के लिए क्या लिखोगे? T3. T3 means not 3. T3 means third term. And similarly, what it means? Tn. Tn means nth term. Means जो nth number पर हो उसको हम nth term बोलेंगे. Okay. Now, the common difference for 4. What is the common difference? It is represented by D. Common difference. Common difference को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देख लीजिए, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लीजिए, या कोई भी टर्म हो उसमें से उससे पहले वाली टर्म का माइनस कर लीजिए, देन इट विल बी D. ओके, ये दो चीजें, दो नोटेशंस आपको पता होनी बहुत जरूरी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी टर्म कैसे निकाली जाती है. फॉर एन एग्जांपल, आपको कहता हूं कि कोई एक सीक्वेंस है 3 5 8 5 13 18.
इसमें फर्स्ट टर्म कितने हुए? फर्स्ट टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? a से। a इज इक्वल टू 3 एंड द कॉमन डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? d से। नॉर्मली हम इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, या थर्ड में से सेकंड को, या फोर्थ में से थर्ड को, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, देन इट इज 5 एंड इट इज द कॉमन डिफरेंस। अब ठीक है, मैं आपसे कहता हूं बेटा फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बताओ, सिक्स्थ बताओ, सेवंथ बताओ, तो मे भी आप लोग बड़े आराम से बता देंगे मुझे। लेकिन मैं अगर मैं इसमें कहूं कि आप मुझे 50वीं टर्म बताइए या फिर 100वीं टर्म बताइए, तो फिर ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, nth टर्म। nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म मींस आपको कोई भी टर्म निकालनी है, then the formula for the Tn will be equal to a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले को याद रखिए, पूरे एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो स्टार्टिंग में है। Tn is equal to a plus n minus 1 into d। सपोज कीजिए मैं इसी में कहता हूं आपको कि फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t20। t20 का फॉर्मूला फिर क्या होगा? a plus n कितना हुआ? 20 minus 1 into d। नाउ व्हाट इज a? a is 3, 20 minus 1 हो गया 19 बच्चे, और d is 5, then it will be 3 plus 95 means 98। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करके देखते रहेंगे तो 20th नंबर पर जो टर्म आएगी that will be your 98। okay, now we will do some questions on this formula। फॉर्मूला मैं एक बार अलग से साइड में लिखता हूं, हर बार यही फॉर्मूला लगेगा। Tn will be equal to a plus n minus 1 into d। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बोलते हैं इसको। Now we will do some questions on this। For an example, the first example I will take it। You have to given the some group and you have to tell whether it is an AP or not। Suppose it is given that 102, 130 and 142, 150, is it an AP or not? तो तरीका क्या था ये चेक करने का या नहीं करने का? सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट को माइनस करके देखिए, 130 minus 102 it will be 28। now थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, 142 minus 130 कितना है? 12। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट AP। इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है, यही बताना था बस आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट 4k plus 8, 4k plus 8 and 2k square plus 3k plus 6, 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k, 3k square plus 4k plus 4। now the statement is determine the value of k। you have to find the value of k for which these are the three consecutive terms of an AP। it is an AP। क्या है ये? AP। बाकी स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे because it is given to that it is an AP। अगर ये AP है तो क्या होगा? इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म इज योर 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस फर्स्ट टर्म का होगा माइनस k। यहां ध्यान रखिएगा इसका तो साइन चेंज होगा ना, और माइनस है -8, ये d हुआ हमारे पास। इट मींस ये हुआ 2k स्क्वायर 3k minus 4k minus k 6 minus 8 minus 2। ये कॉमन डिफरेंस है आपके पास। और भी तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, वो भी तो कॉमन डिफरेंस होगा। द थर्ड टर्म इज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस सेकंड टर्म ये है आपके पास, इसको माइनस करेंगे बच्चे तो सबके साइन चेंज होंगे, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। नाउ इट विल बी 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस k प्लस k प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2। ये वाला इसका कॉमन डिफरेंस,
उसने बता रखा है स्टेटमेंट में कि ये एपी की टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, और अगर ये एपी की टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इट मींस क्या हुआ कि 2k² minus k minus 2 will be equal to k² plus k minus 2। सबको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पर, 2k² minus k minus 2 minus k² minus k, ये इधर आएगा तो बेटा प्लस 2, दैट्स इक्वल टू 0। इससे 2 कैंसिल हुआ, 2k² minus k² k² minus k minus k minus 2k is equal to 0। now k is the common, k common और क्या रहा, k minus 2 is equal to 0 and k में भी 0 और k minus 2 is equal to 0। यहाँ से एक आंसर आपके पास है k is equal to 0, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आए 2। बोथ आर योर आंसर्स, k is equal to 0 और k is equal to 2। ओके ओके, तो हमने क्या सीखा अभी तक, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a नाम देंगे और जो कॉमन डिफरेंस है उसको निकालने का तरीका, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, या फिर आप किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म n-1 टर्म माइनस कर दीजिए। इट इज ऑलरेडी ओके। आई विल डू सम मोर एग्जांपल्स, इट इज वेरी इजी। थर्ड एग्जांपल, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। यू हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term and the common difference is given to you, जिसके आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। एपी के लिए तो आपको चाहिए नहीं, बस अपने को फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इसने पहले पार्ट में लिखा कि a is equal to 4 and d is equal to 6। इट इज गिवन टू यू कि पहली टर्म 4 है तो पहली टर्म तो लिख देता हूँ 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए 4 + 6 यानी कि कितना हुआ 10, 6 फिर ऐड कर दीजिए 16, 6 फिर ऐड कर दीजिए 22, 6 फिर ऐड कर दीजिए 28, 6 फिर ऐड कर दीजिए 4 का चाहे आप जितने मर्जी टर्म्स निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी में क्वेश्चन माइनस का भी दिया है। सपोज कीजिए a कहता हूं आपके पास इट इज 10 एंड d इज इक्वल टू -3। माइनस करते रहना सेकंड टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म तो 10 है ही, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, 3 माइनस कर दीजिए, 10 - 3 कितना हो गया 7, फिर 3 माइनस कर दीजिए 7 - 3 4, फिर 3 माइनस कर दीजिए 4 - 3 1, फिर 3 माइनस कर दीजिए 1 - 3 -2 -5 -8, जितने मर्जी टर्म्स आप निकालना चाहे निकाल सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव बदल मत होना, a + d नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। ओके, नाउ फाइंड द, अब आपको कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए बोलेगा, अभी तो आपको सभी टर्म्स निकालने के लिए बोला। नॉर्मली होता क्या क्वेश्चन में, आपसे कहेगा कि थर्ड टर्म निकालो, 8th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, इस टाइप से कोई क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी 3 10 17। ये एपी आपको गिवन है। ओके, इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है 3, डी कितना है बच्चे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो 10 - 3 दैट्स इक्वल टू 7। एंड इसने पूछा क्या है, फाइंड द 16th टर्म। 16th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t16 और 16 टर्म ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो 16 टर्म का a के फार्मूला बताया बेटा मैंने आप लोगों को, tn = a + n - 1 * d। तो n यहां पर हो गया 16, इट मींस 16 टर्म का फार्मूला होगा a + 15d। 16 - 1 करोगे 15 ना। नाउ व्हाट इज a, a is 3 and 15d, d is your 7। तो 3 + 15 7 are 108। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, एक टाइप और है इस इन क्वेश्चंस में एपी और जीपी में। एक टाइप क्या है, which term of the AP 2 7 12 2 7 12 something like this। ये पूछा है कि which term of the AP, इस AP की कौन सी टर्म is 67। इसने क्या पूछा कि which term is 67। तो आप क्या करेंगे, let the nth term is 67, let nth term को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, tn से 67। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, ये एपी गिवन है आपको और आपसे पूछा गया कि इसमें चलते चलते 67 कब आएगा, मतलब किस नंबर पर, 5th टर्म का हो गया, 10th हो गया, 17th हो गया, व्हाटएवर इट इज, ये पूछा है कि 67 कब आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज a, a इज अगेन 2, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, फिर d कैसे निकालते हैं बच्चे, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, कि nth टर्म में से उससे फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 7 - 2 दैट्स इक्वल टू
5 is your d. Now what is given to you? Tn. Tn is equal to 67. Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d is equal to 67. What is a? a is 2. n नहीं पता, minus 1 d. d कितना बचे? 5. That's equal to 67. 2 plus या 2 को उधर ले जाता हूँ तो ये बच गया n minus 1 into 5. इस 2 को तो आप इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा. 67 minus 2 it will be 65. n minus 1 5 डिवीजन में होगा. 65 by 5 13 and n will be equal to 13 plus 1 that's equal to 14. It means 14th नंबर पर जो टर्म आएगी ना करते करते 2 7 12 एंड जो भी आप आगे ऐड करते रहेंगे 14th टर्म जो होगी वो तुम्हारी 67 होगी. यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर n फ्रैक्शन में आ जाता है, इफ इट इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते हैं ना, जैसे 3/4 5/8 7/6 whatever it is, तो अगर कोई फ्रैक्शन में आ गया तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. कभी आपने सुना 2.5th टर्म? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. या तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो फ्रैक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल. तो बाय चांस अगर इसमें फ्रैक्शन आ जाता है तो एक बार तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो. अदरवाइज फिर भी अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इट मींस देखिए 7 के बाद 12 आया तो 8 9 10 11 इस सीक्वेंस में नहीं है, तो इट मींस क्या हुआ कि 67 इस सीक्वेंस में नहीं. अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो की बात कर रहा हूं. ओके, अभी तो फिलहाल 14 आ गया, वो एक अलग बात है. अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या फिर नेगेटिव और नेगेटिव आ जाती है, इन दोनों केसेस में आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच दिस टर्म इंक्लूड्स दिस इन दिस सीक्वेंस. ओके, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. एक नेक्स्ट टाइप है तुम्हारी, इसमें आता है बच्चे आपको दो टर्म्स गिवन होंगी, सिर्फ आपको टर्म्स बताएगा, ए और डी नहीं बताएगा, और आपको ए या डी या फिर कोई भी और टर्म वहां से आपको फाइंड आउट करनी होगी. फॉर एन एग्जांपल, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4. ये मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, यहाँ उसमें लिखूंगा लैंग्वेज, उसमें मैथ्स में. द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4. सेवेंथ टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T7 and it is given to you -4. And the 13th term is -16. 13th term is -16. आगे स्टेटमेंट को बाद में पढ़ूंगा, क्या पूछा क्या नहीं पूछा. दो चीजें आपको गिवन होंगी, दो टर्म्स आपको गिवन होंगी, कोई भी दो टर्म्स हो सकती हैं, वो वहां से आपको पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ए और डी आपके पास है तो आप किसी भी एपी में कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब दो टर्म्स गिवन तो कैसे करेंगे? पहले यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे. सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a plus 6d that's equal to -4. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलर T13 का फॉर्मूला क्या होगा? a plus 12d. a plus 12d कितना गिवन आपको? -16. ये समझ में आ गया? ओके, ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशंस बन गई. इसको आपको भी से सॉल्व करते आ रहे हैं 10th क्लास में भी. तो क्या करें? माइनस कर दें. तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा. 6 - 12 - 6d दैट्स इक्वल टू -4 + 16 -12, सॉरी +12, एंड d इज इक्वल टू -2. d पॉजिटिव और नेगेटिव से घबराने की जरूरत नहीं है. d की वैल्यू आ गई. d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? a plus 6d is equal to -4. What is a? अभी नहीं पता चली वैल्यू है कि 6 into d. d कितना था बेटा? -2. That's equal to -4. a minus 12 is equal to -4 and a is equal to -4 plus 12. It means 8. तो a की वैल्यू हो गई 8. ये आपसे क्या क्या पूछ सकता है? वो आपको कह सकता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म. आगे अपने पास a की वैल्यू 8. ये आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस -2. ये आपसे को कह सकता है कि राइट डाउन द सीक्वेंस और सीक्वेंस. तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म कितने हुई? 8. सेकंड कितने हुई? d -2 है ना, तो 8 - 2 करेंगे 6, -2 करेंगे 4, -2 करेंगे 2. इस टाइप से चलता रहेगा एंड यू विल गेट द सीक्वेंस. 3 4 या 5 टर्म्स लिख लीजिएगा, उसके बाद डैश डैश लगा दीजिएगा, ये तुम्हारी सीक्वेंस चलती रहेगी. एक बात और पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि वो आपसे आपको कह दे कि फाइंड द 50th टर्म. कोई बात नहीं, हमें फार्मूला पता है. एक और टर्म पूछ सकता है वो आपसे फाइंड द 50th टर्म. तो आप क्या करेंगे?
T50 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 49d. व्हाट इज a? ये आपने फाइंड आउट किया था 8 प्लस 49d. d आपने फाइंड आउट किया था -2. ये हो जाएगा 8 माइनस 98 एंड दैट्स इक्वल टू -90. अगर आप इसको करते करते 58 टर्म तक देखें तो -90. ये तीन ही चीजें आपसे पूछी जाएगी, या तो a की वैल्यू पूछी जाएगी, या d की वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर मे बी सीक्वेंस पूछ ले, ap पूछ ले लास्टली, या फिर आपसे कोई टर्म पूछ ले, भाई फला टर्म निकालो, 58 टर्म निकालो, 100 टर्म निकालो, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है. तो ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स. तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से, खत्म कहां होते हैं? 99 पर. लेकिन इसने कौन से 2 डिजिट पूछे? आर डिविजिबल बाय 6. 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं? तो 6 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 12. 12 के बाद फिर क्या होगा 2 डिजिट नंबर? 18 which is divisible by 6 and 24 and like this. And what will be the last number of 2 digit? It will be 96, I think. Yes, 96 will be the last number. Okay. Question क्या आपका पढ़िए जरा. How many? तो हमें बताना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं. तो मैं मान लेता हूं कि n टर्म्स हैं. That total terms is equal to n. Total number of terms is n. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई? 12. What is d? d is your 18 minus 12 6 and what it is? 96. Last term? लास्ट टर्म कौन से? लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ? आपने कितने टर्म्स माने इन सबको? n. तो इट मींस ये क्या है? nth टर्म इज इक्वल टू 96, क्योंकि आपने n लास्ट वो बोला भाई टोटल टर्म्स n है, तो n टर्म लास्ट टर्म होगी. ये a हो गया, d हो गया, tn हो गया. बस इस इक्वेशन पुट कर लीजिए. व्हाट इज tn? a की फार्मूला मैंने आपको बताया था. tn विल बी इक्वल टू a plus n minus 1 into d. व्हाट इज a? a इज योर 12. n नहीं पता मुझे, फाइंड आउट करना है. -1 d is your 6 and nth टर्म कितनी थी आपकी? 96. That's equal to 96. तो यहाँ से इस 12 को उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पर. n minus 1 into 6. 12 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा? 84. I think yes 84 and n minus will be equal to 14 and n is equal to 15. It means 6 से डिवाइड होने वाले टोटल 2 डिजिट्स के जो नंबर है वो कितने हैं? 15. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट. ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा. एक एपी दिए बेटा, बाद में बताता हूं स्टेटमेंट क्या है. 21 18 15 21 18 15 and it is up to -81. -81 करते करते माइनस में आ जाएंगे ना टर्म से, और -81 तक इसने अपनी सीक्वेंस बनाई है. अब क्वेश्चन पढ़िए जरा. फाइंड द 12th टर्म. अगर सिर्फ 12th टर्म पूछता बेटा तो कोई दिक्कत नहीं थी, a plus 11d. लेकिन आगे पढ़िए. फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट. क्या पूछा उसने? 12th टर्म फ्रॉम लास्ट. तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि लास्ट से टर्म्स पूछी गई हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. पहली बात तो जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइंड आउट कीजिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था n निकाल के, और फिर n में से 12 माइनस कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए. 1 ऐड करना बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करता हूं. समझ में मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए. n क्या है? टोटल टर्म्स. टोटल टर्म्स. फिर जो लास्ट से टर्म पूछी गई है उसको माइनस कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए. n निकालना मैंने भी आपको सिखाया था. दिस विल बी द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट. ये लास्ट से टर्म हो जाएगी. ठीक है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा. एक सेकंड मेथड इसका क्या है? आप ऐसा कीजिए, आपकी जो गिवन एपी है वहां पर a की वैल्यू कितनी है? 21. d की वैल्यू कितनी हुई? 18 माइनस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है. इस बात का ध्यान रखना है, कई बच्चे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, वो फिर साइन चेंज हो जाएगा तुम्हारा. सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है. 18 minus 21 is equal to -3. and what is this? -81. this is the last term. -81. ओके. अब आपने करना क्या है? अगर आप 12th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना चाहते हैं, 12th
टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी लास्ट टर्म है, अगर आप पीछे से काउंटिंग करना शुरू करें तो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट टर्म पर ना, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई आपके पास -18, समझे बात को। डी क्या लेना फिर आपने इस क्वेश्चन में, जितने भी आपके जो गिवन इक्वेशन में जो डी की वैल्यू थी उसका साइन चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं तो डी कितना आया, अगर ऐसे पढ़ रहा हूं तो डी कितना है 18 - 20 -3। लेकिन बेटा अगर मैं इसको 15 18 21 अगर ऐसे पढ़ूं लास्ट से 15 18 21 लास्ट से तभी आएगी ना 12th टर्म या जो भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए, तो यहाँ पर डी तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन चेंज नहीं हो जाएगा क्या, तो डी का आपने साइन चेंज करना। मैं जो बोल रहा हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। लास्ट टर्म को आपने ए मानना है, डी जो गिवन सीक्वेंस में था उसका साइन चेंज करके आपने नया डी बना लेना। ओके, अब जो भी टर्म पूछी गई है लास्ट से वो कर दीजिए 12th टर्म, तो अब डी 12 था क्योंकि लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए, कर दिया हमने, तो यहाँ पर a + 11d। नाउ व्हाट इज a -81 into 11 into d is 3, सो कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। ये जो ट्रेस समझते हैं करने की मेथड ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, इसमें कोई वो जबरदस्ती नहीं है कि आप क्या रूल करना चाहिए क्या नहीं, मेरी सलाह इसको करने की होगी। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, for what value of n, you have to find the value of n, for what value of n the nth term किसकी nth term of 2 APs, यानी कि आपको दो अलग अलग APs गिवन है और दोनों की आपने nth term लेनी है। फिर देखते हैं क्या कहता है। पहली AP आपको गिवन है बेटा 63 65 67 63 65 67 अप टू जो भी चलता रहे, ये एक AP हो गई। दूसरी AP बेटा 3 10 17 3 10 17 और ये दो एपी हो गई। इन दोनों एपी में स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म्स, इसकी भी nth टर्म निकालनी है, इसकी भी nth टर्म निकालनी है। ये nth टर्म इसको कैपिटल T से लिख देता हूं nth टर्म के लिए, ये दोनों की nth टर्म्स हो गई आर इक्वल, यानी कि दोनों को इक्वल रखना है, तो Tn और ये Dn these are equal, अलग अलग एपी। ओके, नाउ इस सीक्वेंस में a की वैल्यू, ये Tn के लिए नहीं है बेटा, ये स्टार्ट में लिखा गया है। इस सीक्वेंस के लिए a की वैल्यू कितनी है, a = 63 और d कितना है बच्चे, d = 65 - 63 दैट्स इक्वल टू 2। और इस सीक्वेंस के लिए एक नहीं, अब स्मॉल a लिखोगे तो फिर वो सेम हो जाएगा, कैपिटल A लिख देते हैं, नोटेशन ही तो देनी है। कैपिटल A कितना हुआ 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 सेकंड एपी की, और जो कॉमन डिफरेंस को मैं कैपिटल D से लिख रहा हूं, D कितना हुआ 10 - 3 दैट्स इक्वल टू 7। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। तो इसकी वैल्यू टर्म और इसकी वैल्यू टर्म, तो इसके वैल्यू टर्म का फार्मूला क्या होगा, a + n - 1 into d, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, नोटेशन ही बदलेगी और क्या होगा n - 1 into d। पुट द वैल्यूज, a की वैल्यू कितने बच्चे 63, n नहीं पता मुझे -1, d है बेटा 2 दैट्स इक्वल टू a is your 3 plus n - 1 into d is your 7, 63 plus 2n minus 2, 3 plus 7n minus 7, n वाली टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ, बाकी सबको एक तरफ, 63 ये -2 इधर बेटा, ये 3 इधर आएगा -3, it will plus 7 and it will be 7n, उधर से n को इधर लेकर आओगे -2n। मुझे लगता है कि मुझे आगे कराने की जरूरत है। You can find the value of n. Okay? Next, ये भी अच्छी टाइप है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और क्योंकि टॉपिक आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है इसलिए वैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, नो डाउट, दो आते हैं इस चैप्टर में से, एपी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का। If 5 times, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, if 5 times the fifth term, ये आपकी लैंग्वेज में है, मैं इसको मैथमेटिक्स में लिखता हूँ, कैसे लिखोगे, if 5 times times का मतलब मल्टीप्लाई, 5 times the fifth term, 5 times the fifth term of an AP, एक AP है, 5 times करना है fifth term का,
ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, लैंग्वेज को सिर्फ मैथ्स में चेंज करना और कुछ नहीं करना, आपने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करनी है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म। बस ये स्टेटमेंट जिस बच्चे को लिखने आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाए, आगे तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं हो। 5 टाइम्स व्हाट इज t5, t5 का फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा a plus 4d, okay, and the 10th term will be a plus 9d. now it will be 5a, या आप उस 5 को उधर जाओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेशन तुम्हारा काम बेटा। 5 4 जा 20d, 10a plus 90d, इसको उधर लेकर गए ले आओ या इसको इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी बच्चे। फिर से 5a minus 10a that's equal to 90d minus 20d, 5a minus 10a minus 5a and 90 minus 20 70d and a will be equal to minus 14, बस है ना मेरे ख्याल से, yes 14d, a is equal to minus 14d। बिना आगे स्टेटमेंट पढ़े मैंने एक रिलेशन बना दिया है a में और d में कि a is equal to minus 14d। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं दोबारा से। If 5 times the fifth term of an AP is equal to 10 times the 10th term of an AP is equal to, show that, you have to prove, you have to show that what, that its 15th term is 0। to prove में क्या है बेटा, to prove में है 15th term is equal to 0, यानी कि आपको 15 टर्म निकालनी। तो T15 का फॉर्मूला क्या होगा, a plus 14d, a की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी बोला, minus 14d plus 14d is equal to, ये एक रिजल्ट भी वैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे इसमें क्या था, फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स, 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल था, तो 10 और 5 कितना 15 टर्म्स हमेशा 0 होगी। सपोज करो मैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझेगा आपको कहता हूं कि एक एपी की 7th टर्म का 7 टाइम्स और 12th टर्म का 12 टाइम्स इक्वल है, तो 12 और 7 19, तो 19th टर्म जो है वो 101% 0 ही आएगी। ये रिजल्ट भी बना सकते हैं आप इसको यहां से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडिल टर्म समझते हैं। मिडिल तो पता ही है, बीच में जो टर्म हो, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब जो बीच में है। अब बीच में है तो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में कितने लिख रहा हूं। अगर सपोज करो 1 2 3 4 5, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी, इसमें तो 3 होगी, दिख रहा है सबको, मैं 2 इधर छूट गए 2 इधर छूट गए, ये थर्ड टर्म जो है बीच में आ गई। लेकिन अगर मैं 6 कर दूं तो अब मिडिल टर्म कौन सी होंगी, नाउ द मिडिल टर्म्स विल बी 2, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द मिडिल टर्म्स। तो डिपेंड ये करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन है या ओड है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो क्या करोगे। Now if total terms is n, total terms कितनी है n। Now if n is even या odd बात मान लेता हूं पहले, if n is odd, अगर n odd है तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, जितने भी टर्म्स हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें 1 ऐड कीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, ये टर्म, ये समझ रहे हैं क्या लिखा मैंने। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए 5 है, तो 5 में 1 ऐड कर दो 6 का आप कितना हो गया 3, थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ओके, सिमिलरली इफ n इज इवन, अगर n इवन है बेटा तो कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म 2 होंगी यहां पर, कौन कौन सी, एक तो n/2x सीधे, ओके, और एक दूसरी टर्म क्या होगी n/2 + 1, इन दोनों में फर्क समझ रहे हैं। ये n में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, यहाँ n को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड करना है, ये दो टर्म्स तो तुम्हारे मिडिल टर्म होगी। ये चीज समझ में आ गई, तो बाकी मैंने पहले बताई रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में करवाऊंगा, डोंट वरी। अगर ये चीज समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, 5th टर्म एंड 6th टर्म, उनको ऐड नहीं करना, 2 से डिवाइड नहीं करना, मीन नहीं निकालना अपने को, दोनों ही अलग अलग तुम्हारे आंसर्स होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन पूछा इसने मिडिल टर्म के ऊपर, एक एग्जांपल बेटा, क्या बोला, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 6 3 20, और ये है बच्चे कहां तक 216 तक है, ये इसकी मिडिल टर्म पूछी गई आपसे। ओके,
तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ओड है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू टोटल टर्म्स इज इक्वल टू n। तो यहां पर a की वैल्यू होगी बेटा 6, d कितना हुआ 13 माइनस 6 7, और ये 216 क्या है nth टर्म ना, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हैं आप 216। नाउ फार्मूला tn का a plus n minus 1 into d is equal to 216। what is a 6, n नहीं पता, minus 1 d 7 that's equal to 216, n minus 1 into 7 is equal to minus करेंगे 210 and n minus 1 is equal to 30 and n is equal to 31। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म नहीं निकालना होगा, मिडिल टर्म कौन सी होगी वो बता रहा हूं। 31 इज ऑड ना, तो 31 में 1 ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, you get 32 upon 2, 16th term will be the middle term। तो अगर उसने सिर्फ ये पूछा है कि which term will be the middle term, then your answer is 16। फिर ये पूछा कि middle term भी बताओ, तो आप T16 निकालेंगे बेटा, T16th term निकालेंगे। T16 का फॉर्मूला क्या होता है, a plus 15d। now what is a is your 6 plus 15, what is d 7। I think you can calculate it easily। ओके एक टाइप ये होती है, डोंट वरी, एक दो टाइप बच्चे ज्यादा नहीं, दो टाइप और है बस बेटा, मैं बताता हूं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी गिवन है बेटा आपको, कितने बोला 120 116 112, ठीक है, ये कम होती जा रही है ना, 120 116 112, ये करते करते कभी ना कभी तो नेगेटिव आएगी। यही इसने पूछा कि which term will be the first negative term, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी टर्म होगी, which number। ओके, तो फिर से वही कहना, मैं मान लेता हूं कि nth term is the first negative term, let nth term is first negative। नेगेटिव टर्म nth टर्म को तो मैं tn लिखता हूं, नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, लेस देन 0। तो tn, व्हाट इज tn, a plus n minus 1 into d is less than 0। what is a is your 120 plus n minus 1 into d, d की वैल्यू कितना बेटा -4। ध्यान रखना सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है बेटा, ठीक है, -4 is less than 0। 120 minus 4n plus 4 is less than 0। minus 4n is less than, उधर गया -124, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करेंगे, लीनियर इक्वेशन ध्यान है, जब साइन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इट मींस 4n is greater than 124 and n will be greater than 4 3 4 1 n is greater than 31, यानी कि n की वैल्यू 31 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि n will be 32 33 34, ये सब नेगेटिव होंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट नेगेटिव, तो फर्स्ट नेगेटिव आपके पास हो गई 32। ओके, एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर, सपोज करो तुम्हारी कैलकुलेशन करते हुए बेटा ये 123 या 25 आ गया, ठीक, ये 125 आ गया तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 1 4, पॉइंट 1 4 बचा तो 25 बचा ना मेरे ख्याल से, यस। n should be greater than 31.25, और आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, तो भी अपना आंसर n is equal to 32, क्योंकि 32 1.25 के बाद पहला जो पूरा नंबर आएगा, जो नेचुरल नंबर आएगा, दैट विल बी योर 32। सपोज करो ये कम रह जाता 31 से, सपोज करो ये आता तुम्हारे पास 4n is greater than 123, तो यहाँ से क्या हो जाना था, n will be greater than 4 3 और 4 0 0 तो 30.75, n should be, फिर से वही बात, n कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकता, यहाँ तुम्हारा फिर आंसर 30.7 के बाद जो नेचुरल नंबर होगा 31, वो तुम्हारा आंसर होगा। ये सब पजल तो नहीं है ना, इसको ध्यान से देखो। ओके, नाउ लास्ट टाइप, the last example of this exercise, if the pth term, qth term
एंड द rth टर्म। तीन टर्म्स बताई इसने, कौन कौन सी टर्म? pth टर्म। तो pth टर्म, फिफ्थ टर्म को अगर मैं t5 लिख रहा हूं, सिक्स्थ को t6 लिख रहा हूं, तो pth टर्म को मैं क्या लिखूंगा बेटा? tp। ओके, pth टर्म, qth टर्म, तो qth टर्म को मैं क्या लिखूंगा? tq। एंड द rth टर्म को क्या लिखूंगा बेटा? rth टर्म, tr। ऑफ एन एपी, एक एपी की pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म तीनों बताइए उसने, कौन कौन से? x, y and z। This is equal to x, it is given to you. This is equal to y, it is given to you. This is equal to z, it is given to you. स्टेटमेंट को बाद में पढ़ूंगा। यहाँ से क्या पता चल गया मुझे? TP का फॉर्मूला क्या होता है? a plus p minus 1 into d, that's equal to x। यहाँ से TQ का फॉर्मूला क्या होगा? a plus q minus 1 into d is equal to y। TR का फॉर्मूला क्या होगा? a plus r minus 1 into d is equal to z। अब स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आगे। फिर क्या कहते हैं? देन शो दैट, आपको शो करना है या प्रूव करना है, क्या बता? यू हैव टू प्रूव या टू शो, जो भी आप लिखें। टू प्रूव में क्या है बेटा? x into q minus r, x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equal to 0 करके बताना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं इसी के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड है बेटा आप लोगों के पास x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q। लेफ्ट हैंड साइड है। x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या थी? a plus p minus 1 into d, ये हो गई x की वैल्यू। और इसके मल्टीप्लाई किसके साथ? q minus r के साथ। y की वैल्यू क्या थी? a plus q minus 1 into d into r minus p plus z की वैल्यू क्या थी बच्चे? a plus r minus 1 into d, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? p minus q के साथ। अब बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, पेपर सिर्फ 2.5 घंटे का होता है, 2.5 दिन कोई नहीं देगा अपने को। ये जो मल्टीप्लाई करने बैठो ना, पूरी खोलने मत बैठ जाना, थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो बेटा, अदरवाइज अगर खोल भी लोगे तो गलत कुछ नहीं होगा, टाइम ज्यादा खराब होगा, मिस्टेक होने की चांस आपके जो है वो बढ़ते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। a की मल्टीप्लाई q माइनस r के साथ होगी, इस a की मल्टीप्लाई r माइनस p के साथ भी होगी, इस a की मल्टीप्लाई p माइनस q के साथ भी होगी। तो क्यों ना a को कॉमन निकाल दिया जाए, इसी तरीके से करना है, यहीं पर रख देना स्टेप को। a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाला तो क्या आया? q माइनस r। a को इसके साथ किया, फिर a को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया? r माइनस p, और वो वहां क्या बच गया? p माइनस q। a की मल्टीप्लाई होगी सारे q माइनस r के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई q माइनस r के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई r माइनस p के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई p माइनस 1 के साथ होगी। क्या सब में d कॉमन नहीं है? तो मैं एक बार d को कॉमन निकाल देता हूं, और कुछ कॉमन है ही नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो p q, यहाँ क्या होगा? माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ आपकी। ये हो गया बच्चे क्यू आर ए क्यू माइनस आर प्लस पी, और ये हो गया बेटा प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ से ये सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी, क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी, और ये हो गया a इंटू 0 प्लस प्लस डी इंटू, ये भी देखो पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव का इसमें ये रहा, पी क्यू नेगेटिव, पी आर से पी आर क्यू आर सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? 0, which means that's equal to 0। और आपको यही प्रूव करना था कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा प्लीज, फिर नेक्स्ट। ओके।